Okay. How to multiply? The first row will multiply it with the first column. The first row will multiply it with the first column. The first number is multiplied with the first number, 1 into 1. Then plus sign. The second number is multiplied with the second number, minus 4 into 0. First row is multiplied with the first column. Answer will be written in the first row, first column. First row, first column. Then the first row is multiplied with the second column. The answer will be written in the first row, second column. The first row is multiplied with the second column. So we will write the answer in the second column. First row, second column. Again, the first number is multiplied with the first number, plus the second number is multiplied with the second number. All the columns are finished. If there is a third column, we will multiply the first row with the third column, and answer will be written in the first row, third column. But there is no third column, so it is over. The first row is over. Now we start the second row. Again, the second row is multiplied with the second column. Second row is multiplied with the first column. The answer will be written in the second row, first column. The answer will be written in the second row, first column. So 0 is multiplied with 1, plus minus 9 is multiplied with 0. First row is multiplied with the second row is multiplied with the first column. Second row is multiplied with the first column. The answer is written in the second row, first column. Now the second row is multiplied with the second column. The answer will be written in the second row, second column. So 0 is into 0 was 0. 0 into 0 plus minus 9 into 1. There is no other column, so finish. Now we will simplify, just to simplify. 1 सर into 1, जी बेटा कहिए सर फिजा गौरी वेटिंग रूम में है। जी। फिजा गौरी वेटिंग रूम में है। फिजा गौरी को क्या हुआ? वेटिंग रूम में है सर वो। फिजा गौरी नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है वेटिंग रूम में बेटा। वेटिंग रूम में मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त। फिजा गौरी को मैंने एंटर किया था, नजर नहीं आ रही, शायद चली गई वो, आउट हो गई वो। इस वक्त कोई भी वेटिंग रूम में नहीं है। अच्छा आप आइए। ओके, 1 into 1 will be 1, plus minus 4 into 0 will be 0.
1 into 0 will be 0, plus minus 4 into 1 will be minus 4. So this is minus 4. Second row, 0 into 1 will be 0, plus minus 0 into 1, 0 will, minus 9 into 0 will be 0. 0 into 0 will be 0, minus 9 into 1 will be minus 9. Now the next step, 1 plus 0 will be 1, 0 minus 4 will be minus 4, 0 plus 0 will be 0, 0 minus 9 will be minus 9. This is the answer. तो ये है मल्टीप्लीकेशन। दोबारा मैं आपको बताता हूं, जब हमने a इंटू 1i को मल्टीप्लाई करना है, किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो ये a है 2/2 का, तो i भी हमें 2/2 का ही लेना पड़ेगा। i हमेशा स्क्वायर में लेना पड़ेगा। अगर ये भी स्क्वायर 2/2 है तो इसको भी हमें 2/2 लेना पड़ेगा। अगर ये 2/3 है तो इसको 3/3 लेना पड़ेगा। 3/2 ये हो नहीं सकता, 3/3 लेना पड़ेगा। अगर ये 3/2 है तो इसको हमें 2/2 लेना पड़ेगा। तो फिर बीच वाले नंबर हमने चेक करने हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी सेकंड नंबर शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स द फर्स्ट नंबर। ये दोनों नंबर एक जैसे अगर होंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों नंबर एक जैसे नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपने याद रखना है, इन नंबरों को हमने नहीं देखना। ये हमारे प्रोडक्ट का साइन आएगा, साइज आएगा, जो हमारा आंसर होगा उसका साइज ये होगा, दिस नंबर बाय दिस नंबर। जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा उसका साइज ये होगा, द फर्स्ट नंबर बाय द लास्ट नंबर। अच्छा, अब हमने चेक कर लिया ये दो नंबर एक जैसे हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इफ दे कैन बी मल्टीप्लाइड, दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो वी विल मल्टीप्लाई। हाउ टू मल्टीप्लाई? ए के नीचे ए लिखिए, बी के नीचे दूसरे मैट्रिक्स के नीचे दूसरा मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के नीचे पहला मैट्रिक्स लिख दीजिए, दूसरे मैट्रिक्स के नीचे दूसरा मैट्रिक्स लिख दीजिए। अब first row of the first matrix will multiplied with the first column of the second matrix। उसमें पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों प्रोडक्ट को। द आंसर विल बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आंसर किसमें लिखा जाएगा? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम। वो कॉलम खत्म हो गया, फिर आप सेकंड कॉलम शुरू करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें भी उसी तरह पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, और दोनों को ऐड कर देना है। ये अब होगा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम होगा। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आपने आंसर लिखना होगा। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आंसर लिखना होगा। अब उसके बाद थर्ड रो नहीं है तो खत्म कर देंगे, हम सेकंड रो स्टार्ट कर देंगे, यहां से भी और यहां से भी। अब सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 इंटू 1 और 9 इंटू 0, और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम हो गया। अब यही रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो द आंसर विल बी रिटन इन द सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम। उसमें भी पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों प्रोडक्ट को। ये हमारा सेकंड रो का सेकंड कॉलम आ गया। अगर और कोई कॉलम होता तो उससे भी ये मल्टीप्लाई हो जाता। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। 1 इंटू 1 विल बी 1, माइनस 4 इंटू 0 विल बी 0, तो प्लस 0। 1 इंटू 0 विल बी 0, माइनस 4 इंटू 1 विल बी माइनस 4। सेकंड, 0 इंटू 1 विल बी 0, माइनस 9 इंटू 0 विल बी 0, प्लस 0 इंटू 0 विल बी 0, और माइनस 9 इंटू 1 विल बी माइनस 9। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें। 1 प्लस 0 विल बी 1, 0 माइनस 4 विल बी माइनस 4, 0 plus 0 will be 0, 0 minus 9 will be minus 9. So this is the final answer. The size of this matrix, the size of this is
2 by 2. This will give the size of the product, size of the answer 2 by 2. ये इसका आंसर आ गया 2 by 2 का। तो हम बगैर मल्टीप्लाई किए भी हम साइज बता सकते हैं कि प्रोडक्ट का क्या साइज होगा। The size of the product will be 2 by 2. Without multiplication we can find. If they are equal, so it means they can be multiplied. Then what will be the size of the product? That will be this one by this one. बीच वाले खत्म हो जाएंगे। So that was E part. Now we'll do H part. B into C. B into C. H. B into C. First we'll check the size. We will write the size of B. B is 2 by 2. Now we'll write the size of C. C is 2 by 3. Now the middle numbers are equal. The middle numbers are equal. Therefore, we can multiply. B into C is possible. B into C is possible. And the size of the product will be 2 by 3. 2 by 3. This will be the size of the product. Okay. If it is possible, we will multiply them. We will multiply them. How to multiply? Again, write the matrix B. B is 4, 3, minus 7, 0. Remember, there must be the proper gap, the proper space between the two elements. There must be the proper space between the two elements. B. Now the C. 5, minus 1, minus 1. 12, 0, 2. We will write the matrix C. There must be the proper space between the elements. अब इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम. फोर इंटू 5 and 3 into 12 plus 3 into 12. पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों प्रोडक्ट को ऐड करते हैं. The first row is multiplied with the first column. Answer will be written in the first row, first column. पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आंसर भी पहली रो के पहले कॉलम में लिखा जाएगा. अब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर पहली रो के दूसरे कॉलम में यहाँ लिखा जाएगा. So 4 into minus 1, this will be multiplied with this one. 4 into minus 1 plus 3 into 0. 3 into 0. अब फर्स्ट रो जो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. फर्स्ट रो जो है थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. 4 इंटू माइनस और आंसर फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा. 4 इंटू माइनस 1 थर्ड कॉलम प्लस सेकंड नंबर विद द सेकंड नंबर 3 इंटू 2. इंटू 2. तो ये फर्स्ट रो जो है ये तमाम कॉलम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई और फर्स्ट रो के 3 कॉलम बन गए. अब सेकंड रो स्टार्ट होगी जब सब कॉलम खत्म हो जाएंगे, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होकर सेकंड रो स्टार्ट करेंगे तो सेकंड रो भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में आंसर लिखा जाएगा. -7 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 12. फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया. अब
second row is multiplied with the second column. Minus 7 into minus 1 plus 0 into 0. फिर सेकेंड रो जो है थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा. माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 2. थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई सेकेंड रो, तो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में आंसर लिखा जाएगा और ये खत्म हो गया. उसके बाद कोई कॉलम नहीं है. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. 4 into 5 will be 20. 3 into 12 will be 36. 4 into minus 1 will be minus 1. 3 into 0 will be 0. 4 into minus 1 will be minus 4. Sorry, सर वो -4 होगा. बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, जज़ाकल्लाह. 4 into minus 1 will be minus 4. 3 into 0 will be 0. 4 into minus 1 will be minus 4 plus 3 into 2 will be 6. Second row. Minus 7 into 5 minus 35 plus 0 into 12 will be 0. Minus 7 into minus 1 will be 7. 0 into 0 will be 0. Minus 7 into minus 1 will be 7. Plus 0 into 2 will be 0. Close. अब हम इसका फाइनल आंसर यहां लिख देते हैं. (20 plus 36 will be 56. Minus 4 plus 0 will be minus 4. Minus 4 plus 6 will be 2. There must be the proper space between the two elements. Minus 35 plus 0 will be minus 35. 7 plus 0 will be 7. 7 plus 0 will be 7. This is the answer. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. क्या आया? 56. 56 minus 4 2 minus 35 7 7. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. (56 minus 4 2 minus 35 7 7). So the size of this matrix is 2/3. ये 2/3 एंड नंबर जो है वो शो करेंगे इसका साइज 2/3. एंड नंबर विल शो द साइज. ईशा भट्ट. तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को. दोबारा मैं इसको बता देता हूं. बी इंटू सी लिखा हमने, उसके नीचे उसका साइज लिखा, साइज ऑफ बी, साइज ऑफ सी, एंड चेक whether the middle numbers are equal. Yes, the middle numbers are equal. The middle number ये क्या किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स. और ये नंबर किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स. सो नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स should be equal to the number of columns of the first matrix. दोनों इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. इन नंबरों को हमने चेक नहीं करना, बीच वाले नंबरों को सब चेक करना है. मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे? बी के नीचे बी मैट्रिक्स लिखा, सी के नीचे सी मैट्रिक्स. फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. दे दो. तो 4 into 5 plus 3 into 12. ये कॉलम खत्म हो गया, रो खत्म हो गई, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आंसर लिखा जाएगा. 4 into minus 1 plus 3 into 0. In the same way, we'll multiply the third
column with the first row. So 4 into -1 plus 3 into 2. तो इस थर्ड कॉलम भी खत्म हो गया फर्स्ट रो का. Okay. In the same way, we will multiply the second row with the first column. The answer will be written the second row, first column. Second row start हो जाएगी. जब यहाँ से second row start करेंगे तो यहाँ भी second row हमारी start हो जाएगी. पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड रो के पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो के दूसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा दूसरी रो के थर्ड कॉलम. ओके. -1 into 5 plus 0 into 12 -7 into -1 plus 0 into 0 -7 into -1 plus 0 into 2. ये हो जाएगा. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 4 into 5 will be 20 plus 3 into 12 36. 20 plus 36 will be 56. ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया. अब सेकंड कॉलम देखेंगे. 4 into -1 will be -4. 3 into 0 will be 0. -4 plus 0 will be -4. ये लिखिए. उसके बाद 4 into -1 will be -4. 3 into 2 will be 6. -4 plus 6 will be 2 हो गया. तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया. अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे. -35 -7 into 5 will be -35 plus 0 into 12 will be 0. -35 plus 0 will be -35. -7 into -1 will be 7 plus 0 into 0 will be 0. 7 plus 0 will be 0. 7. 7 plus 0 will be 7. Third, -7 into -1 will be 7. 0 into 2 will be 0. 7 plus 0 will be 7. So this is the final answer. 56 minus 4 2 minus 35 7 7. This is the answer. तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये था हमारे पास h. नाउ I C into B. That was B into C. Now C into B. I part. C into B. The size of C. C का क्या साइज है? 2/3. The size of C 2/3. C का साइज 2/3 लिखा. Size of B 2/2. B के नीचे 2/2 लिखा, थोड़ा फासला देकर. Now we'll check the middle number. This is 3, this is 2. They are not equal. So therefore multiplication is not possible. Multiplication is not possible. तो याद रखिए कि C B into C was possible. उसका हमने आंसर भी निकाल लिया, लेकिन C into B is not possible. तो जरूरी नहीं है C into B भी पॉसिबल हो. तो इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव. If B into C is equal to C into B, this is called commutative. If C into B is not equal to B into C, this is called the non-commutative. So this multiplication of the matrices is not commutative. Sometimes by chance it is possible. Sometimes यानी अगर दोनों के साइज 2/2 हो, वो भी 2/2 हो, या 3/3 होता, वो भी 3/3 होता, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते. B into C और C into B इक्वल हो मतलब इनके आंसर तो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये दोनों क्या हो जाते,
पॉसिबल था इनके मल्टीप्लिकेशन, तो वो बाई चांस है कि पॉसिबल हो, लेकिन बाई लॉ जो है it does not hold the commutative law. The multiplication of matrices does not hold the commutative law. यानी जरूरी नहीं है कि b इंटू सी अगर पॉसिबल है तो c इंटू बी भी पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल भी होगा तो जरूरी नहीं है वही आंसर होगा, अगर पॉसिबल भी है तो जरूरी नहीं है कि वही आंसर होगा। तो याद रखना है आपने कि अगर b इंटू सी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि c इंटू बी पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल भी होगा तो जरूरी नहीं है कि आंसर इक्वल हो। बाई चांस आंसर इक्वल हो सकते हैं, वरना इनके आंसर इक्वल नहीं होंगे। ओके, ये आई पार्ट था, एच और आई। अब है हमारे पास आई जे, सी बी ट्रांसपोज, सी बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2, तो बी ट्रांसपोज का क्या साइज होगा, ये यहां लिखा जाएगा पहले और ये यहां लिखा जाएगा, ये वहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ट्रांसपोज में इंटरचेंज हो जाती है रोज और कॉलम। तो बी ट्रांसपोज का साइज भी 2x2 होगा। अब सी का साइज हमारे पास 2x3 है और बी ट्रांसपोज का साइज भी 2x2 है। अब देखें ये नंबर जो है they are not equal, the middle numbers are not equal, therefore C into B transpose is not possible. सर क्लास खत्म होने के फौरन बाद क्विज है या असाइनमेंट है सर? आज नहीं बेटा, नेक्स्ट वीक मैंने लिखा है, उस पर डेट भी डाल दी है, नेक्स्ट वीक की बात की है, क्विज आज नहीं है। अच्छा ठीक है सर। मंडे को सर? जी मंडे को। तो ये जे जो है वो नॉट पॉसिबल है। अब के ए बी ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज, तो इसका मतलब ये हुआ पहले ए इंटू बी हम फाइंड आउट करेंगे, फिर जो है हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले ए इंटू बी को हम देख लेते हैं पॉसिबल भी है कि नहीं है। ए का साइज 2x2 है, बी का साइज भी 2x2 है, तो ये पॉसिबल है और ये हम कर भी चुके हैं, ए इंटू बी हम कर भी चुके हैं। तो ए इंटू बी पॉसिबल है, पॉसिबल है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का ए लिखेंगे हम, ए हमारे पास क्या है 1 -4 0 -9 इंटू बी 4 3 -7 0 और इसका होल ट्रांसपोज कर देंगे, वो अपनी जगह रहेगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर होल ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 4 प्लस -4 इंटू -7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 प्लस -4 इंटू 0, सेकंड कॉलम भी खत्म हो गया। अब सेकंड थर्ड कॉलम नहीं है इसलिए थर्ड कॉलम शुरू नहीं करेंगे, अब सेकंड रो शुरू कर देंगे। 0 इंटू 4 सेकंड रो का भी फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 4 प्लस -9 इंटू -7, फिर 0 इंटू 3
प्लस -9 इंटू 0, और ये होल ट्रांसपोज भी करना है। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर ट्रांसपोज करेंगे। -1 into 4 will be 4, -4 into -7 will be 28, 1 into 3 will be 3, -4 into 0 will be 0, 0 into 4 will be 0, -9 into -7 will be +63, 0 into 3 will be 0, -9 into 0 will be 0, whole transpose. Four into 28 will be 32, 3 plus 0 will be 3, 0 plus 63 will be 63, 0 plus 0 will be 0, whole transpose. अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, इन रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। 32 3, this row is converted into the first row is converted into the first column. 32 3 will become 32 3 in the first column, 63 0 so second column. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कैसे करेंगे दोबारा मैं इसको समझा देता हूं। ए बी होल ट्रांसपोज है, तो हमने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज तो बाद की बात है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो ट्रांसपोज होगा। ए बी को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। ए का साइज 2/2 है, बी का साइज भी 2/2 है। बीच वाले नंबर एक जैसे हैं तो दे कैन बी मल्टीप्लाइड, और प्रोडक्ट का 2/2 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट किसका 2/2 हो गया था, उसका ट्रांसपोज कर दिया फिर हमने। अच्छा, अब हमने इसको जब बीच वाले नंबर इक्वल है so they can be multiplied. So how to multiply? We will write the A matrix, then B matrix, और होल ब्रैकेट डालकर हमने ट्रांसपोज लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 1 into 4 प्लस -4 into -7, फिर 1 into 3 प्लस -4 into 0, 0 into 4 प्लस -9 into -7, 0 into 3 प्लस -9 into 0. Simplify किया, 1 into 4 will be 4, -4 into -7 will be +28, plus into +28 will be +28, 1 into 3 will be 3, plus -4 into 0 will be 0, plus 0, 0 into 4 will be 0, -9 into -7 will be +63, 0 into 3 will be 0, -9 into 0 will be 0, 4 plus 28 will be 32, 3 plus 0 will be 3, 0 plus 63 will be 63, 0 plus 0 will be 0. होल ट्रांसपोज हमने सब पे लिखते चले आना जब तक ट्रांसपोज ले नहीं लेंगे। लिख, अब इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया, फाइनल हो गया। इनसाइड ट्रांसपोज ले लेना है। ये फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट रो बन गई, सॉरी फर्स्ट कॉलम जो है 32 63, ये फर्स्ट रो बन गई 32 63, और सेकंड कॉलम 30, ये सेकंड रो बन गई 30। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। तो पहले ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व करना, ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट था, मल्टीप्लिकेशन था, उसको अगर प्लस होता तो प्लस कर लेते, फिर ट्रांसपोज लेते। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन था तो हमने पहले चेक किया ये ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है या नहीं है। इट इज पॉसिबल, सो वी मल्टीप्लाइड देम। उसके बाद हमने जब प्रोडक्ट फाइनल हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया आखिर। तो जब तक हमने ट्रांसपोज नहीं लिया था, हम ट्रांसपोज लिखते चले आए कि इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। आखिर में जब ले लिया तो फिर नहीं लिखा, वो हमारे पास फाइनल आंसर आ। तो इस तरह हम करते हैं बेटा। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में।
जे बी होल ट्रांसपोज था, ये था। इस तरह बी सी होल ट्रांसपोज होगा, ये भी। और पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेंगे। उसके बाद ए सी प्लस बी है, तो ए सी तो पॉसिबल हो जाएगा, प्लस बी उसमें पॉसिबल नहीं